across a galvanometer as shown here in the figure. Now, we will hold the second coil nearer to the first coil. More specifically to say, hold the second coil under influence of magnetic field of first coil. Now, we can observe that there is no voltage appeared across the second coil. There will be no deflection in the pointer of the galvanometer. Although at that condition, there is magnetic flux linkage in the second coil from first coil, but no voltage induced in the second coil. Now, we move the second coil inside the influence of magnetic field of first coil. Now, we can observe that during movement of the second coil, the pointer of the galvanometer deflects. This indicates that some voltage has been induced across the second coil while the second coil was moving. Now, let us move the first coil, keeping the second coil stationary at its place. In that case also, we will observe that there is a voltage induced across the second coil. In this case also, the pointer of the galvanometer deflects. In first case, there was a flux linkage in the second coil from first coil, but no voltage induced in the second coil. In the second and third cases, there was still flux linkage in the second coil from first coil, but the flux linkage was changing due to movement of coils. So we can now conclude, whenever a coil or any other conductor comes under influence of changing magnetic flux, there is a voltage induced in it. The voltage induced due movement of the conductor or magnetic field is called dynamically induced voltage. We can create the same condition without any movement of either of the coils. In that case, we have to apply an alternating voltage across the first coil. This produces a changing flux. This changing flux will link the second coil, and for some reason, there will be an induced voltage across the second coil. In that case, both conductor and magnetic field are physically stationary. The induced voltage in this case is called statically induced voltage. In all events, when there is a changing flux linkage, a voltage is induced. This phenomena was first observed by Michael Faraday, and he stated as a law called Faraday's first law of electromagnetic induction. Faraday's first law says, when a conductor links with a changing magnetic flux, there is a voltage induced in it. Now, we will move the second coil faster inside the influence of magnetic field of first coil. We will see that during faster movement of the second coil, there is more deflection of pointer of the galvanometer connected to it. Same thing happens if instead of second coil, we move the first coil faster. So, when relative motion between magnetic field and conductor increases, the induced voltage across the conductor is also increased. The increase of relative motion between magnetic field and conductor means increase in rate of change of flux linkage with respect to time. Michael Faraday stated that in his second law of electromagnetic induction. His second law states the magnitude of induced EMF in a conductor is directly proportional to the rate of change of flux linkage with respect to time. If we observe the pointer movement of galvanometer during movement of the second coil or first coil, we will find that the movement of the pointer in one direction when both coils come closer, and the movement of the pointer in opposite direction when both coils go away from each other.
When the coils come closer, there is an increasing rate of flux linkage, and when the coils go away from each other, there is a decreasing rate of flux linkage. Thus, the polarity of the induced EMF in a conductor depends upon whether the rate of change of flux linkage is increasing or decreasing. Now, let us come to the mathematical form of Faraday's law of electromagnetic induction. If there is n turns in second coil and rate of change of flux linkage with respect to time in second coil is d by dt, then the induced EMF in the second coil is E equals to minus n d by dt. Here, two things to remember. One, constant of proportionality is 1. This means EMF induced in a turn of coil is exactly equals to the rate of change of flux linkage with respect to time with it. 2. There should be a minus sign in the left hand side of the equation. This is to justify the Lenz law, which states that polarity of the induced EMF opposes its cause, which is changing flux linkage. Hope you got a basic idea of Faraday's law of electromagnetic induction. Thank you. Okay, we saw the video related on electromagnetic induction. The invention of Michael Faraday was a great scientist. Okay, so before that, I want to share with you the biography of Michael Faraday. Okay, the invention of electromagnetic induction. क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? कैसे? शायद मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर हूँ, पर जैसे ही आप मेरे वीडियो को क्लिक करते हैं, मैं वहां पहुंच जाता हूँ। ये कैसे मुमकिन है? हमारे संदेश बिना नजर आए लाइट की स्पीड से पहुंचते हैं। हमारे पास ये कमाल की ताकत कैसे आई? ये सब एक इंसान के दिमाग की उपज है। गरीबी में पैदा हुआ ये बच्चा जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं। सच तो ये है कि अगर ये इंसान न होता तो आज हम जो ये दुनिया देख रहे हैं वो न होती। आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये दो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, पर इन दोनों के बीच के दौर में एक और जीनियस पैदा हुआ, बिल्कुल इन्हीं के जैसा। यह इंसान उस राज को सुलझा दिया जिसमें न्यूटन उलझ गए थे, और उसी के काम की बदौलत आइंस्टाइन इतना आगे जा पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान साइंटिस्ट माइकल फैराडे के बारे में। सन 1751 में लंदन की एक गंदी सी झुग्गी में माइकल फैराडे का जन्म हुआ। वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत कम उम्र में ही छोड़ दी। फैराडे अपनी रूढ़िवादी क्रिश्चियन परिवार की परंपराओं को बहुत मानते थे। उससे उन्हें हमेशा ताकत, सुकून और विनम्रता का एहसास होता था। 13 साल की उम्र में वे किताबें जिल्द करने वाले कारखाने में काम करने लगे। दिन में वो किताबों पर जिल्द चढ़ाते और रात में पढ़ते। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उनके जुनून की शुरुआत हुई। कई साल बुक बाइंडिंग का काम करने के बाद 21 साल के फैराडे एक बड़ी दुनिया में पहुंचने का ख्वाब देखने लगे। वह मौका उन्हें तब मिला जब एक कस्टमर ने एक नया तरह का एंटरटेनमेंट शो का टिकट दिया, साइंस फॉर द पब्लिक। उस शो की शुरुआत लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में हुई। हम्फ्री डेवी न सिर्फ उस दौर के माने हुए वैज्ञानिक थे, बल्कि उन्होंने कई एलिमेंट की खोज की थी, जैसे कि कैल्शियम और सोडियम। वो एक मंजे हुए शोमैन भी थे। इलेक्ट्रिसिटी का शो लोगों को बेहद पसंद आता था। वो शो खत्म हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, पर फैराडे तालियां नहीं बजा रहे थे। वह डेवी के भाषण का एक एक शब्द लिख रहे थे। उन्होंने उसे बाइंड कर डेवी को तोहफा दिया। उन्होंने सोचा शायद ये तोहफा देने से उस महान वैज्ञानिक के पास जाने का एक मौका मिल जाए, और हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने उन्हें अपने पास बुलाकर बुक बाइंडिंग का काम करने के लिए रख लिया। जल्द ही फैराडे ने डेवी का सारा काम संभाल लिया। कुछ दिनों के लिए मिला काम पक्की नौकरी में बदल दिया गया और रॉयल इंस्टीट्यूशन उनके घर की तरह हो गया। दिन में वो डेवी की मदद करते और शाम होते ही वो ऊपर अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते, जहां उनकी पत्नी शेरा उनका इंतजार कर रही होती। हम्फ्री डेवी
और केमिस्ट विलियमसन बॉल्सन एक अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि जब तारों से बिजली दौड़ती है तब कंपास की सुई तार से दूर भाग रही थी। उन्हें लगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में जरूर कोई रिश्ता है। हम्फ्री ने फराडे का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कहा कि अगर साफ सफाई का काम खत्म हो तो वो भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। फिर क्या था, फराडे एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने में पूरी तरह जुट गए और जितना भी वक्त मिलता वो इसी में लगे रहते। उन्होंने मेटल का एक टुकड़ा, एक कटोरी मरकरी और जरा सा कॉर्क से उन्होंने दुनिया की पहली मोटर बना ली जिसने इलेक्ट्रिक करंट को लगातार चलने वाली मैकेनिकल मोशन में बदल दिया था। दिखने में ये बहुत बौनी थी, मगर उस गोल घूमती सुई ने एक क्रांति ला दी। हमारी सभ्यता पर असर डालने वाला आविष्कार या खोज इसके आगे बौनी साबित हो गई। फराडे की आविष्कार की खबर तेजी से फैल गई और देखते ही देखते डेवी का यह असिस्टेंट लंदन की आंख का तारा बन गया। जाहिर है ये डेवी को रास नहीं आया। आखिरकार उन्होंने भी तो इतने सारे एलिमेंट खोजे थे, मगर लोग कहने लगे थे कि उनकी सबसे बड़ी खोज थी माइकल फैराडे। फिर उन्होंने फैराडे को ब्रिटिश ऑप्टिकल ग्लास की क्वालिटी बढ़ाने का जिम्मा सौंप दिया। लेकिन फैराडे 4 सालों तक बिना किसी कामयाबी के इसमें जूझते रहे। फैराडे अपनी नाकामयाबी के याद में एक ग्लास की ईंट साथ में ले आए और सालों बाद इसी ईंट ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। डेली की मौत होने के बाद फैराडे को इस नाकाम प्रोजेक्ट से आजादी मिली और झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ ये लड़का डेली के लैब का डायरेक्टर बन गया। इस नई ताकत का फैराडे ने बहुत कमाल का इस्तेमाल किया और हर साल क्रिसमस में नौजवानों को विज्ञान पर भाषण देना शुरू किया। 1875 में शुरू हुआ यह सिलसिला आज भी जारी है। फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जब वो मैग्नेट को कॉइल में डालते हैं तो उससे बिजली उत्पन्न होती है। यह दुनिया का पहला जनरेटर था। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को जरूरत के मुताबिक पैदा किया जा सकता था। फैराडे 49 साल के थे तभी उनके बेमिसाल दिमाग को याददाश्त खोने और डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया। उनका काम रुक गया। वो फिर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी उनकी सबसे बड़ी कामयाबी इसके बाद हासिल हुई। फैराडे मानते थे कि कुदरत की ताकत एक है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिश्ते को तो सामने ला दिया था, मगर वो ये भी सोचते थे कि कहीं तीसरी ताकत यानी लाइट भी तो इससे जुड़ी हुई नहीं है। अगर वो नजर न आने वाली इन तीनों के रिश्ते को उजागर कर पाते तो कुदरत के सबसे बड़े राज से पर्दा उठ जाता। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने एक शीशे के सामने एक लालटेन रख दी। आईपीस ये लालटेन उन्हें तभी दिख सकती थी जब उसका रिफ्लेक्शन आईपीस की जाली को पार कर पाता। उन्होंने सैकड़ों तरह के ट्रांसपेरेंट केमिकल्स और दूसरी चीजों को आजमाया, मगर उन्हें आईपीस में कुछ नजर नहीं आया। चुंबक से रोशनी की तरंग नहीं मुड़ रही। उन्होंने अनेक कंपाउंड, एसिड, बेस और गैसेस आजमाया, फिर भी कुछ नहीं दिखा। तंग आकर उन्होंने ग्लास की उस ईंट को आजमाने का फैसला किया जो डेवी की वजह से बर्बाद हुए सालों की निशानी थी। इससे काम बन गया। चुंबक की ताकतों ने रोशनी की तरंग को इस तरह मोड़ दिया कि वह क्रिस्टल के पार निकल गया। फैराडे ने दिखाया कि हर मैग्नेट का न दिखने वाला अपना फील्ड होता है। उन्होंने दिखाया कि इलेक्ट्रिसिटी से जा रहे तारों के चारों ओर लोहे के छिल्लन डालने से वही पैटर्न बनता है जो एक बार मैग्नेट के डालने से बनता है। माइकल फैराडे ने वो राज हल कर दिया था जिसे आइजैक न्यूटन नहीं सुलझा पाए थे। ग्रहों को छुए बगैर सूर्य कैसे उन्हें एक खास तरीके से चलने के लिए बोलता है। सूर्य अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड से ग्रहों को छूता है और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड सेब को बताती है कि उसे कैसे गिरना है। बदकिस्मती से उस समय के वैज्ञानिक यही सोचते थे कि फैराडे सपना देख रहे हैं। वो उनकी आविष्कार करने की क्षमता और प्रयोगों की तो तारीफ करते थे, मगर उनकी नजर न आने वाली लाइन ऑफ फोर्सेस के विचारों को मनगढ़ंत मानते थे, क्योंकि उनको सच साबित करने वाले सबूत फैराडे के पास नहीं थे। वो उनके विचारों को मॉडर्न फिजिक्स के भाषा यानी मैथमेटिकल इक्वेशन में देखना चाहते थे और यहीं पर फैराडे की बचपन की गरीबी और सिलसिलेवार पढ़ाई न करने वाली कमी आड़े आ गई। वह ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए।
पर फिर 19वीं सदी के महान फिजिशियन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल उनकी मदद के लिए सामने आए। 20 से कुछ ज्यादा उम्र में वह गणित में नाम कमा चुके थे। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फैराडे के हर शब्द को पढ़ डाला। उन्हें यकीन हो गया कि फील्ड ऑफ फोर्स एक हकीकत है और इसके लिए वह गणित का फॉर्मूला तैयार करने में जुट गए और आखिरकार उन्होंने फैराडे के सिद्धांतों को फिजिक्स के इक्वेशन में लिख डाला। फैराडे का बचपन बहुत गरीबी में बीता। यह वो दौर था जब समाज में अमीर और गरीब के बीच बहुत गहरी खाई थी। इसके बावजूद वो अपने जमाने के सबसे मशहूर वैज्ञानिक बन गए। 40 साल की उम्र तक उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफॉर्मर और जनरेटर जैसे मशीनें बना दी थी, जिन्होंने आगे चलकर हर चीज को बदला। 60 साल की उम्र में जब ज्यादातर महान वैज्ञानिक का अच्छा दौर बीत चुका होता है, याददाश्त की कमी और डिप्रेशन के बावजूद वो इन नजर ना आने वाले ताकतों की खोज में लगे रहे और अंत में उनके विचार सत्य साबित हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। We came to know that this lesson is related on science. So one of the scientists named the Michael Faraday, okay, which come in the great scientist list. He invent lots of things, and we take the with those things specialist nowadays. Okay, so the great scientist. All of you open your English textbook, page number 49, unit number 2 and lesson number 7, great scientist. Okay. Great scientist. Okay. Great scientists are pursuing and never deterred by difficulties. देखो तो जो ग्रेट साइंटिस्ट रहते, महानतम जो वैज्ञानिक रहते, वो कभी अपना काम अंजाम तक यानी आखिरी समय तक लेके जाके ही रुकते हैं। ठीक है, ग्रेट साइंटिस्ट आर परसिविंग एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टीज। तो उस काम में कौन सी भी डिफिकल्टी आए, कौन सी भी कठिनाई आए, फिर भी वो रुकते नहीं। वो अपना जो एफर्ट रहता है वो एफर्ट कंटिन्यू करते हैं। प्रिजर्विंग यानी परसिविंग यानी कंटिन्यू करना, ठीक है। और डिटर्ड यानी डिले, कोई भी काम में डिले नहीं करते, नेवर डिटर्ड। ओके, यानी काम में कोई डिले नहीं करते, ठीक है। सो ग्रेट साइंटिस्ट आर परसेविंग एंड नेवर डिटर्ड बाय डिफिकल्टी। जो कठिनाई आती है, महानतम जो वैज्ञानिक, उनको बहुत सारी कठिनाई आई उनके जीवन में, तो फिर भी कठिनाइयों का उन्होंने सामना कर कर जो खोजबीन, जो इन्वेंशन किए हैं, उसी इन्वेंशन के बावजूद हम अभी आराम से बहुत सारे उनके इन्वेंशन से आराम से उस चीजों का लाभ उठा रहे हैं। तो थैंक्स ऑल दो साइंटिस्ट हु इन्वेंट lots of things for us and we enjoy that. Okay, so we learned we watch the video related on one scientist, Michael Faraday. So this lesson is about the scientist named Michael Faraday. Okay, let's move. Let's start the lesson. Okay. So Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and inventors of the modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's law. Okay, we watch the what was the Faraday's law? Okay, so a law is about the electromagnetic इंडक्शन। ओके, तो उसके बारे में माइकल फैराडे का क्या था, लॉ था, ठीक है।
तो माइकल फैराडे की बायोग्राफी के उनके जीवन के बारे में भी हमने क्या किया, एक वीडियो देखा कि बहुत सारा स्ट्रगल उनके लाइफ में उन्होंने किया, ठीक है। तो माइकल फैराडे इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। डिस्टिंग्विश यानी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे। एंड द इन्वेंटर्स, इन्वेंटर्स यानी जो उन्होंने इन्वेंशन किया, जो आविष्कार किए इन द मॉडर्न टाइम्स। तो उस जमाने में जो जो आविष्कार किए वो जो जाने माने वो क्या थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो बारे में जो उन्होंने इन्वेंशन किया, तो हमारे बहुत सारे स्टैंडर्ड में उनके बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या रहती है, ये लेसन रहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उनका लॉ था, ठीक है। बट फ्यू नोज हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी which is all about courage and fighting against the odds. ओके, जो उनके लाइफ में बहुत सारे कम लोगों को मालूम है कि उनकी लाइफ बहुत सारी कठिनाइयों से भरी थी। ओके, और उनकी लाइफ इंस्पिरेशनल यानी हम लोगों को, हम जब उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें उनसे क्या मिलेगी, इंस्पायर मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज ऑल अबाउट द करेज एंड फाइटिंग अगेंस्ट द ऑड, जो जो कठिनाई आई उनका माइकल फैराडे ने कैसे अपने जीवन में सामना किया धैर्य से, उसके बारे में ये लेसन है, ठीक है। तो माइकल फैराडे वाज बोर्न इनटू, ओके, Michael Faraday was born into the poverty-stricken family in a dirty London suburb. Okay, okay. तो माइकल फैराडे एक गरीब घराने से, पावर्टी यानी गरीब, ओके, तो गरीब घराने से, और स्ट्राइकन फैमिली, ओके, तो पावर्टी यानी गरीब घराने से थे, उनके माँ बाप ज्यादा अमीर नहीं थे, ठीक है। एंड डर्टी लंदन सबर्ब, लंदन का जो भाग था, ओके, सबर्ब में यानी आउटर साइड ऑफ द सिटी, सिटी का जो आउटसाइड का एरिया रहता था, वहां पर माइकल फैराडे और उनकी फैमिली रहती थी, ठीक है। सबर्ब यानी आउटर साइड ऑफ द सिटी, उसको बोलते सबर्ब, ओके। ही सफर फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट एज अ चाइल्ड। तो माइकल फैराडे अपने जब छोटे थे तब वो एक समस्या उनको थी, ही सफर फ्रॉम अ स्पीच डिफेक्ट यानी उनको बोलने में थोड़ी तकलीफ होती थी, ठीक है। स्पीच डिफेक्ट यानी बोलने में थोड़ी तकलीफ होती थी। ही वुड प्रोनाउंस रैबिट एज वैबिट, ओके। वो बोलने में तकलीफ होने के कारण, प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ होने के कारण ही वुड प्रोनाउंस, तो उच्चार कैसे करते थे रैबिट का, वैबिट, ठीक है। ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम एंड वुड कॉल हिमसेल्फ फाउडे, ओके। तो वो खुद का जो नाम है फैराडे, वो भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे अपने छोटे चाइल्डहुड में, यानी बच्चे जब वो छोटे थे तब। तो उनका नाम था फैराडे, लेकिन वो फावडे ऐसा बोलते थे, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन यानी स्पीच डिफेक्ट का उनको प्रॉब्लम था, ठीक है। अदर चिल्ड्रन लाफ एट हिम एंड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम आइदर। जो उनके क्लास के चिल्ड्रन थे, जो उनके कलीग थे, ओके, तो वो सभी चिल्ड्रंस उन पर क्या करते थे, हंसते थे। और जो टीचर थे, इवन आल्सो टीचर डोंट वांट टू हेल्प हिम, ओके, टीचर भी उनको क्या नहीं करते थे, मदद नहीं करते थे। When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. तो ये सब देखकर उनकी जो माता थी, मदर थी, उन्होंने माइकल फैराडे को, ग्रेट साइंटिस्ट, उनको क्या किया,
जो 12 साल के वो साल में था माइकल फेराडे, तो उनको स्कूल से निकाल दिया, ठीक है, और उनका जो एजुकेशन था, फॉर्मल एजुकेशन, वो स्टॉप हो गया, ठीक है। At 13, however, he started working with bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. So after leaving the formal education, he started new job of bookbinder. So what was the bookbinder? Which profession can you imagine? So binding a book. Okay. क्या करना है? बुक बाइंडिंग करने का एक प्रोफेशन है। देखो, लुक इन पिक्चर, द पर्सन बाइंडिंग अ बुक्स, इट्स कॉल्ड एज बुक बाइंडर। ओके, सो बुक बाइंडर एट 13, however he started working with a book binder। तो 13 जो उनका 13 साल के उम्र में उन्होंने क्या किया? बुक बाइंडर एंड बाइंडिंग, बुक बाइंडर का जो ये था व्यवसाय, उन्होंने बुक बाइंडर का नौकरी पकड़ ली, ठीक है। बाइंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द डे एंड स्टेइंग अप ऑल नाइट टू रीड देम। तो उस समय वो क्या करते थे? जो 100 तक सभी बुक्स क्या करते? बुक बाइंडिंग करते थे, और उनको उस बुक को क्या करते थे? रीड करते थे। ओके, रीडिंग दस बिकेम हिज ऑब्सेशन। ऑब्सेशन यानी साधना थी एक ही प्रकार की, क्योंकि वो बुक के सामने, बुक से रिलेटेड ही उनका काम था। तो आफ्टर बुक बाइंडिंग दे read all those books who bind, okay, and reading thus become his obsession. Okay, one day he came across a book on electricity which had seen sent to his master for binding। एक ऐसा दिन आया, तो उस दिन में उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिसिटी नामक का एक बुक, उनके हाथ में जो उनके मास्टर को बाइंडिंग करने को वो बुक दिया था, तो माइकल फेराडे के हाथ में लग गया। ही स्टार्टेड रीडिंग एट इट एंड वाज कंप्लीटली हुक्ड। Okay, then he started the reading and he enjoyed the books. He came to know the lots of information about the electricity. Okay, that was his first introduction to the subject of electricity, which soon become a lifelong fascinations. Okay, so this is the first starting of his career. He started his career and become the highest point of his life. Okay, he invention of the electromagnetic induction. He started this reading book and get the information about the electricity. Okay, the next paragraph is Faraday was still poor at 21. Okay, तो 21 जब उम्र भी हो गई, लेकिन फेराडे अभी तक उनकी जो परिस्थिति थी, कौटुंबिक परिस्थिति, वो अभी गरीबी की हालाकी की थी, ठीक है। Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist हम्फ्री डेवी एट लंदन रॉयल इंस्टीट्यूशन। देखो, तो लंदन में स्थित एक रॉयल इंस्टीट्यूशन था, तो उस रॉयल इंस्टीट्यूशन में फेराडे का एक जो फ्रेंड था, उसने एक टिकट उसको उस डेमोन्स्ट्रेशन को जाने को दिया, ठीक है। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन था हम्फ्री डेवी। ओके, वी केम टू नो the Humphrey Davy, one of the great scientists who invent lots of chemicals. Okay, potassium, sodium, magnesium, calcium. Okay, so that time Humphrey Davy present demonstrate lots of things in front of the people. Okay, so one of the friend gave the ticket for Faraday to attend that demonstration of Humphrey Davy. Where is it? At the London's Royal Institution. ठीक है, तो लंदन रॉयल इंस्टीट्यूशन में हम्फ्रे डेवी का एक डेमोन्स्ट्रेशन था, तो उस डेमोन्स्ट्रेशन में
फैराडे को मौका जाने को मिला, ठीक है। Davies' work on chemicals and electrical lightning was the subject of conversation among the scientists. Conversation among the scientists of the age. Okay, जो हम्फ्रे डेवी था, ओके, ग्रेट साइंटिस्ट था उस टाइम पर, तो केमिकल्स जो रासायनिक क्रिया रहती थी और इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, उसके संदर्भ में बाकी जो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उनके साथ वो क्या करते थे, बातचीत चर्चा करते थे, ठीक है। 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first constant light bulb. देखो, we know in science that Thomas Edison invention the light bulb, ठीक है। तो 17 years later, 70 years के बाद तो थॉमस एडिसन ने किसका शोध लगाया, किसका इन्वेंशन किया, तो लाइट बल्ब का, ठीक है। That day 1812 Faraday was spellbound by Davies lecture. हम्फ्रे डेवी का जो लेक्चर था, स्पेलबाउंड यानी वो काफी उससे प्रभावित हुए, स्पेलबाउंड यानी प्रभावित हुए, ठीक है। हम्फ्रे डेवी के जो लेक्चर था लंदन रॉयल्स इंस्टीट्यूट में, तो उस इंस्टीट्यूट में जब उन्होंने उनका लेक्चर देखा, तो उस लेक्चर से हम जो माइकल फैराडे वो प्रभावित हुए, ठीक है। तो कौन से समय का था, 1812। He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. जो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था, किसने, डेविस ने, हम्फ्रे डेविस ने, मिस्टीरियस फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लूइड, तो उसके बारे में उन्होंने नोट्स लिखे, खुद नोट्स अपने जो बुक्स में लिखे हैं, ओके, नोट डाउन किए उन्होंने। He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. वो इतना व्यस्त थे माइकल फैराडे, तो वो सभी जो लोग आसपास के लोग डेविस का जो प्रेजेंटेशन, जो एक्सपीरियंस वो दिखाते थे, प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन वो दिखाते थे, उसके बाद जो आजू बाजू के ऑडियंस थे वो क्या करते थे, तालियां बजाते थे। लेकिन जो ये माइकल फैराडे रहते थे, माइकल फैराडे ने क्या किया, वो भूल गए, क्योंकि वो नोट डाउन करते थे ईच एंड एवरीथिंग ऑफ हम्फ्रे डेविस एक्सपेरिमेंट एंड हिज presentation, ठीक है। When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into book, meaning to give to the Davies someday. तो माइकल फैराडे ने सोचा कि अभी ये सब नोट्स मैंने जो निकाले वो क्या करेंगे, बुक सभी नोट्स एक बुक तैयार करेंगे और डेविस, हम्फ्रे डेविस को गिफ्ट करा देंगे, ठीक है। Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist, okay, good enough to write his own books, okay। तो उसने क्या किया, उसने that time he think that only book binding is not enough, he wanted to create his own books, okay, खुद के कुछ बुक्स खुद तैयार करके, कुछ नया इन्वेशन करके, खुद राइटिंग करके नए बुक्स लिखे, ऐसा उन्हें लगा, ठीक है, माइकल फैराडे को। डेविस बिकम हिज रोल मॉडल। हु वाज द रोल मॉडल ऑफ माइकल फैराडे? हम्फ्रे डेवी, ओके, हम्फ्रे डेवी, ओके। Davy became his role model, but there was a problem, okay, he did not have a social status, money and the education to pursue science, okay। तो उनके पास, माइकल फैराडे हमने देखी बायोग्राफी, तो उनका जन्म बहुत साधारण गरीब फैमिली में हुआ, तो उनके उसके कारण वो अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरी कर सके, ठीक है, और साइंस का जो था नॉलेज उनको भी नहीं मिला, तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है।
So Faraday thought it would be wonderful if Davy become his mentor, but Davy did not agree initially. उनको लगता था माइकल फैराडे को कि हम्फ्रे डेवी मुझे गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या किया, हम्फ्रे डेवी ने गाइडलाइन करने के लिए, मेंटर गाइडलाइन करने के लिए माइकल फैराडे को डिसएग्री किया, नकार दिया। ठीक है, फैराडे वाज नॉट डिजेक्टेड, ही जस्ट केप्ट ट्राइंग। लेकिन फैराडे ने अपनी हार नहीं मानी। ठीक है, फैराडे ने क्या, हार नहीं माने, उतना उसने अपना एफर्ट चालू कर दिया विद इन टेकिंग टाइम्स। कौन सा भी टाइम नहीं छोड़कर उन्होंने अपना एफर्ट कंटिन्यूअसली चालू किया। ठीक है, Destiny had a strange plan in store for him. Okay. तो उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की। A few years later, a chemical explosion happened inside Davy's lab, and he was temporarily blinded. तो हम्फ्रे डेवी के एक केमिकल लैब थी। हम्फ्रे डेवी गैस साइंटिस्ट। ओके, तो क्या करते थे, प्रयोग करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, उसका प्रेजेंट भी करते थे। उन्होंने बहुत सारे जो केमिकल है उनका इन्वेंशन किया। तो एक टाइम पर क्या हुआ कि उनके जो केमिकल लैब थी, उस लैब में एक्सप्लोजन हुआ, और उनकी एक्सप्लोजन हैपन इनसाइड डेविस लैब एंड ही वाज टेम्परेरी ब्लाइंडेड। तो उनके आंख में थोड़ी तकलीफ हो गई और उनको थोड़ा सा धुंधला दिखने लगा। ठीक है, हम्फ्रे डेवी को। He now needed an assistant with excellent memory to help him. तो उस टाइम पर हम्फ्रे डेवी को एक असिस्टेंट की जरूरत थी जो उनका काम संभाल सके। He was reminded of Paradis and decided to hire him on his secretary. तो उनको याद लगा कि माइकल फैराडे को उन्होंने बुलाया और उनका सेक्रेटरी बनाया। Davis never believed Faraday could be anything to in the field of science going by his social status and education. तो हम्फ्रे डेवी को ये लगता था कि माइकल फैराडे जो है उसको ये अपने जीवन में साइंस के संबंधित कोई भी नई चीज कर सकता, कि उसका ज्ञान उनको लगता था कम है। ठीक है, he therefore dismissed Faraday's aspiration and advised him to stick to book binding. तो उन्होंने क्या कहा, क्रिएशन and advise him to stick to book binding. तो जो हेम्फ्री डेवी थे, हेम्फ्री डेवीज, उन्होंने क्या किया, माइकल फैराडे को क्या कहा कि बुक बाइंडिंग का काम ही आपको अच्छा है। ठीक है, बट फैराडे वाज रिलेंटलेस। ओके, रिलेंटलेस यानी नॉन स्टॉपिंग। तो फैराडे क्या थमने वाले नहीं थे, उन्होंने अपना कंटिन्यू एफर्ट चालू किया। He worked day and night and learned as much as he could about Davis experiment. जो हम्फ्रे डेविस के जो अलग तरह के एक्सपेरिमेंट थे, वो सभी एक्सपेरिमेंट उन्होंने डे बाय डे उन्होंने पढ़ना शुरू किया। Soon Faraday became the indispensable to Davis and was promoted to his lab assistant. तो डेविस, हम्फ्रे डेविस को अभी जो माइकल फैराडे का इम्पोर्टेंस पता चल गया और लैब असिस्टेंट के लिए उनकी नियुक्ति उन्होंने हम्फ्रे डेवी ने माइकल फैराडे की। इस indispensable means very important. Okay, this was his first step towards a scientific career. तो साइंटिफिक करियर में उनका जो पहला कदम था तो लैब असिस्टेंट से चालू हुआ माइकल फैराडे का। ठीक है, दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वाज क्लीनिंग लैब्स, एट लीस्ट ही गॉट टू सी सम डेविस लीडिंग एक्सपेरिमेंट। तो लैब असिस्टेंट का क्या काम करते थे शुरुआत में वो, तो क्लीनिंग लैब्स का क्लीन करने का काम वो शुरुआत में करती थी। तो उनको लगता था कि उनका जो हम्फ्री डेविस थे, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग थे, वो उनको देखने उनका लाभ वो उठाएंगे। ठीक है,
तो देखो द लाइफ अचीवमेंट ऑफ हम माइकल फेरेडी की लाइफ अचीवमेंट हमने देखी। टू मच स्ट्रगल इन चाइल्डहुड, ओके। तो उन्होंने अलग बहुत सारा स्ट्रगल करके बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, बाद में। तो आपने भी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल रहता है, लेकिन हमें वी नेवर स्टॉप्ड, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू इफ इट इज नेसेसरी टू अचीव द गोल, ठीक है। तो इन दिस लेसन देयर आर सम वर्ड्स रिलेटेड ऑन साइंस, साइंस से संबंधित जो नए वर्ड्स है वो वर्ड और उसका मीनिंग इंटरनेट से ढूंढकर लिखना है। वर्ड्स एंड उसका मीनिंग, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, सर्च इन Google and write down in your notebook and then send to me, okay?